Assalamu alaikum friends. Welcome to the second series of the microbiology lecture. Okay, introductory series. This is the introductory series about microbiology. So, yesterday in the previous video we have learned a couple of things about the introduction. That was an introductory history and scope about the microbiology. That is continued. Okay, this is now second series. So be patient with me. Okay, we in the previous video there was an little bit introduction. Now in this, that portion is continued, history and scope. Today I have written here, that is the members of the microbial world. Members of the microbial world. आज हम ये members जानेंगे. These we will learn about these members, the microbiologists, that what microbiologists study about. Those are the members. Okay, today we will talk about them. So in the previous video we said that microorganisms, as the word itself suggests that micro means small, है ना. Organisms, these microorganisms, they are defined as those organisms which are that are too small to be seen clearly by the unaided eye. So naked eye से अगर हम देखेंगे, if we go to observe a surface by our naked eye, ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा हाथ है. To me this hand appears as clear and bright, there is nothing, okay, but there is also some other life that is residing on my hand. So that is the normal flora on the skin. We call that normal flora. In the later series we will in the later lectures we will come to know about the normal flora that is on our skin, on our bodies. In fact, on our eyelids there are microorganisms. In our gut, inside us, there are microorganisms like E. coli. ठीक, तो अब जो मेरा हैंड है, अगर मैं इस हैंड को ऐसे अनएडेड आई से देखूं, ठीक, नेकेड आई से देखूं, इस पे कोई भी, अगर आप देखोगे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नहीं है. If I am going to put a drop of water here, or just rub it by a stick, okay, तो हम जब इसको थोड़ा सा रब करेंगे, फिर हम इसको स्लाइड पे इस वाटर ड्रॉप को डालेंगे, तो मेरे हैंड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. इस पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि अदर लाइफ है दैट आर टू स्मॉल. तो अनएडेड आई विदाउट एनी हेल्प, नेकेड आई से, जैसे हम है, कोई एक्सटर्नल, देयर शुड बी नो एक्सटर्नल इक्विपमेंट, there is no microscope here in my hand. If I am going to see my hand, this appears clear, there is no life, there is no microorganism on it. But if I am going to use a microscope, if I am going to use some external medium equipment, I will come to know that there are microorganisms. So, and the branch of science that deals with the study of these microorganisms, this is known as microbiology. So now today we will study about the members of the microbial world. ठीक, तो ये तो स्मॉल है, मगर जो रिसर्चर्स है, जो साइंटिस्ट्स है, उन्होंने पाया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स which are visible to our naked eye, but they have a very simple cellular plan. They have cells, okay, like molds है, एंड पॉन्डसिकम जो है, ये फिलामेंटस, फोटोसिंथेटिक एल्गा है. ठीक, ये जो पॉन्डसिकम है या मोल्ड्स है,
like bread molds, ब्रेड मोल्ड्स, ये जो है अगर हम बोल क्या है, क्या कहा जा रहा है कि दीज मोल्ड्स एंड पॉन्ड्सिकम। अब देखिए कि यहाँ पे जो है ये मोल्ड्स एंड पॉन्ड्सिकम, दे आर मैक्रो एज कंपेयर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, बट दे आर somewhat bigger. We can see them without naked eye, like bread molds and filamentous photosynthetic alga. ठीक, तो पॉन्ड्सिकम जिसको हम बोलते हैं, जैसे अगर आप ये कहोगे कि आप कोई ब्रेड का पीस कहीं पे रखोगे, मानो कि आपके घर में ब्रेड पड़ी हुई है बहुत दिनों से, there have been a lot of days, if you go to see in your kitchen or somewhere else, that bread is just lying somewhere, okay, it is on the counter or somewhere else in the refrigerator or somewhere else, but the refrigerator is kept off for a long time, and you will notice that after you open the package of the bread, okay, you will come to know that there is somewhat a discoloration and somewhat of little dots over the bread, over the surface of the bread. So those dots, those colorish dots, they are not just dots, they are bread molds, okay, they are bread molds. So ये हम आंखों से देख सकते हैं, उनमें भी मतलब वो भी सेल्यूलर है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी में फॉल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये मैक्रो इन साइज है। तो साइंटिस्ट थोड़ा परेशान रह गए कि अब हम क्या करें, कि जैसे हम माइक्रोब और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम मतलब यूज़ करते हैं टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो इनको हम क्या करें। ठीक, तो बहुत टाइम तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई किया जा रहा था, तो रिसर्चर्स बहुत टाइम तक सोच रहे थे कि मतलब जैसे ये भी पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हम एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स इसी के साथ उनको ऐसे क्लासिफाई करते थे बहुत अर्लियर टाइम्स में। ठीक, लेकिन फिर जब हम जब रिसर्च और हो गई, डेवलपमेंट्स और हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिस्कवर हुआ, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, तो जैसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी है, बहुत सारे माइक्रोस्कोप आए। जब वो नॉलेज भी माइक्रोस्कोप्स की बढ़ी, तो धीरे धीरे से वो क्लासिफाई होना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना इजी रहा फिर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स को। इससे पहले कि मैं इस पे डिटेल पे जाऊं कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैसे हुई, कहाँ से हुई, वो मैं आपको सब बताऊंगा इसमें कि, लेकिन पहले हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैप है किसका, मेंबर्स ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड, इसका कॉन्सेप्ट मैप दिमाग में आप रखिए। ठीक, जो साइंटिस्ट ने जब क्लासिफाई किया, तो जो ये ऑर्गेनिज्म्स जो या बायोलॉजिकल एंटिटीज, ऑर्गेनिज्म्स एंड बायोलॉजिकल एंटिटीज दैट आर स्टडीड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स, ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड, यहाँ पे लिखेंगे बायोलॉजिकल एंटिटीज। ठीक, ऑर्गेनिज्म्स, अब आप शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, ये ORG ऑर्गेनिज्म्स है, एंड बायोलॉजिकल एंटिटीज। इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करूँ यहाँ पे कि हमेशा याद रखो, ये कहीं पे दिस इज रॉन्ग टू से दैट नॉन सेल्यूलर एंड सेल्यूलर, नहीं सॉरी ये ना, मतलब एक सेकंड, हम बहुत से बुक्स पे देखते हैं यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। कभी भी वायरस सेल नहीं है, वायरस इज नॉट ए सेल, ओके। तो हम यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर बोलते थे, ये यूनिसेल्युलर वायरस यूनिसेल्युलर है और ये बाकी मल्टी सेल्युलर है, ऐसा मत करो। यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर ये वायरस के लिए यहाँ पे नहीं है, हम वायरस को हम लिखते हैं सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर। ठीक, सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर, सेल्यूलर मतलब जिसमें सेल्स आएंगी, सेल्यूलर होगा, चाहे फिर यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। ए सेल्यूलर में विदाउट सेल, बिकॉज वायरस इज नॉट ए सेल, वायरस इनफैक्ट वायरस इज ऑन द बॉर्डर लाइन। ठीक, वायरस जो है, अगर हम लाइफ को डिफाइन करें तो लाइफ की कोई यूनिक डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन वेरी हो जाती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट, क्योंकि लाइफ ऐसे हम डिफाइन नहीं करेंगे, उसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जो वायरसेस है, अगर ये बॉर्डर लाइन है किन के दरमियान, अगर ये लिविंग है इस साइड से, यहाँ से नॉन लिविंग है। ठीक, नॉन लिविंग, आपको मैं ऐसे समझाऊंगा, वायरस ये पे यहाँ पे आई है बात, अब मैं इसको क्लियर करूंगा आपको। मतलब कि हम बोलेंगे वायरस, ठीक, वायरस जब तक एनवायरनमेंट में है,
as long as virus is in the surroundings, it is in the environment, it is not within any body, within any cell, it is just outside the body or outside the outside environment. It is like just a crystal. Okay, it is a protein or it is a nucleic acid crystal. It is as such. Okay, no life there, no metabolism, no biochemical reaction is there, just a dormant stage, just like a dormant seed. जैसे होता है ना, हम अपने घरों में सीड रखते हैं, वो डॉर्मेंट होते हैं, ठीक है। अगर उनको थोड़ा सा पानी डालेंगे, छिड़काव करेंगे या हम नीचे जमीन में डालेंगे तो वहां से पौधा उगेगा, 1-2 मंथ के बाद जर्मिनेशन हो जाएगी, है ना। मतलब सीड्स रखते हैं हम। वैसे ही अगर वायरस बाहर है, ठीक, तो ये नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग। इस टाइम ये नॉन लिविंग है। वायरस अगर आउटसाइड है, एनवायरमेंट में है या कहीं पे है सरफेस पे, ये नॉन लिविंग है उस टाइम। लेकिन जैसे ही ये सेलुलर मशीनरी को हाईजैक करता है, व्हेन अ वायरस एंटर्स द सेल, इट हाईजैक्स द सेलुलर मशीनरी, इट हाईजैक्स न्यूक्लियस, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लाइफ का एक कैरेक्टरिस्टिक इसने किया, इसने रिप्रोडक्शन दिखाई, इसने रिप्रोड्यूस किया खुद को, इसने रिप्रोड्यूस किया खुद को। किसने? वायरस ने। जब ये सेल में एंटर हुआ तो उस टाइम हम बोलेंगे कि ये लिविंग है, लेकिन सेल के बाहर होगा नॉन लिविंग, डॉर्मेंट होगा, ठीक। वैसे ही मैंने बोला कि वायरस हम बॉर्डर लाइन, अगर ये बॉर्डर लाइन है, वायरस बॉर्डर लाइन पे है, ठीक, ये बॉर्डर लाइन पे है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो हम इनको बोलेंगे एसेलुलर, क्योंकि ये सेल नहीं है, वायरस नहीं, वायरस सेल नहीं है। वायरस को हम सेल नहीं, वो गलत होगा अगर हम वायरस को सेल बोलेंगे, क्योंकि सेल के अंदर इसको सेल की जरूरत पड़ती है अपना मेटाबॉलिज्म शुरू करने के लिए, अपने बायोकेमिकल रिएक्शंस को, प्रोसेसेस, जो भी लाइफ प्रोसेसेस है। एक वायरस की तब हो सकती है जब ये सेल के अंदर होगा, तब ये उस सेल के न्यूक्लियस को हाईजैक करता है, इट हाईजैक द सेल्स न्यूक्लियस, ठीक। मशीनरी को यूज करके ये बायोलॉजिकल, ये जो मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो स्टार्ट करता है, मेटाबॉलिज्म दिखाता है, ठीक। तो ऑर्गेनिजम्स एंड बायोलॉजिकल एंटिटीज दैट, ठीक, स्टडीड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स, स्टडीड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स। ऑर्गेनिजम्स एंड बायोलॉजिकल एंटिटीज स्टडीड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स। इसको हम बोलेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, किसको? ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल एंटिटीज, ठीक। ये जो ऑर्गेनिजम्स है और बायोलॉजिकल एंटिटीज है, ठीक, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि खाली बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स, एनिमलिया नहीं है, वायरसेस है, वायरियंस है, ठीक, प्रियॉन्स है ना, मतलब बहुत सारे एसेलुलर वायरल एजेंट्स जो होते हैं, सॉरी, जो इन्फेक्शियस वायरल एजेंट्स होते हैं, नॉट मतलब ये ना एसेलुलर, ठीक। तो अब ये ऑर्गेनिजम्स एंड बायोलॉजिकल एंटिटीज स्टडीड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स। माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स क्या स्टडी करते हैं? ये पहले मतलब ये आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइसोलेशन, ये कुछ प्रोसेस होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते हैं। पहले आइडेंटिफाई कैसे होगा? पहले उसको आइसोलेशन करनी है, ठीक, आइसोलेट करना है, कंटेन करना है इस ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद उसको क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर स्टार्ट करने हैं, उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करनी है, ठीक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखनी है इसकी कि क्या करता है, क्या खाता है, कैसे मतलब अपना मेटाबॉलिज्म करता है, तो वो सब हम यहाँ पे जानेंगे कि ऑर्गेनिजम्स एंड बायोलॉजिकल एंटिटीज स्टडीड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स, राइट। नाउ तो अगर हम यहीं पे लिखेंगे, पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्लियर करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये टेबल पूरा बराबर में आपको दिखाऊंगा, ठीक। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। Organisms and biological entities studied by microbiologists.
organisms, okay, organisms and biological entities studied by microbiologists. कौन से organisms है और कौन सी कुछ एसेलुलर एंटाइटीज, कुछ ऐसे कुछ और भी कुछ एसेलुलर कुछ एंटाइटीज है, या कुछ हम चीज़ें बोलेंगे, हम बोलेंगे मतलब जो भी मतलब जैसे प्रियॉन्स है, जैसे वायरियॉन्स है, ठीक, ये कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, ठीक, या आरएनए होते हैं सिंगली, ठीक, उनकी मतलब सिंगल मतलब कुछ हम न्यूक्लिक कैप्सिड में, न्यूक्लिक प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक शेल में होता है, प्रोटीन शेल में होता है कोई आरएनए मॉलिक्यूल, तो वैसे हम इसको जानेंगे। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स एंड बायोलॉजिकल एंटाइटीज स्टडीड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स है, इसमें हम दो सेलुलर एंड एसेलुलर, ठीक, सेलुलर एंड एसेलुलर, इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, सेलुलर and acellular. Cellular with cells, acellular without cells. A means without, okay, without cells, cellular and acellular. तो या तो एसेलुलर होगा या सेलुलर होगा। सेलुलर में हम जैसे देखेंगे फंजाई है, ठीक, बैक्टीरिया है, आर्किया है, ठीक, फंजाई, बैक्टीरिया है, आर्किया है, प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टस है, ठीक। अब एसेलुलर पे जाओ, इन एसेलुलर व्हाट माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टडी, व्हाट क्या करते हैं वो स्टडी, ठीक। एसेलुलर में वायरसेस, ठीक, वायरियॉन्स, प्रियॉन्स, एसेलुलर में वायरसेस, वायरियॉन्स, ठीक, वायरियॉन्स, ठीक, वायरियोइड्स भी आते हैं इसमें, ठीक है, प्रियॉन्स जैसे वायरियोइड्स, वायरसेस, वायरियॉन्स, प्रियॉन्स, वायरियोइड्स, ठीक। तो वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस या तो प्रोटीन जैसे होते हैं, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक, न्यूक्लिक एसिड्स। अब वायरियॉन्स जो है, ठीक, वायरियॉन्स जब हम देखते हैं, ठीक है, या वायरियोइड्स आरएनए, ठीक, आरएनए होता है वायरियोइड्स में, वायरियोइड्स कहाँ है, आरएनए, ठीक। प्रियॉन्स प्रोटीन, सिंगली प्रोटीन होता है प्रियॉन्स में, प्रोटीन, ठीक। तो वायरियोइड्स आरएनए, ठीक, ठीक है, वायरस में प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो जो मतलब ये एसेलुलर है ना, इसमें सैटेलाइट्स भी आते हैं, सैटेलाइट्स भी है जिनमें खाली न्यूक्लिक एसिड होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे सैटेलाइट्स। तो दिस इज द स्कीम कॉन्सेप्ट मैप ऑफ व्हाट माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स स्टडी अबाउट सेलुलर या फंजाई, बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्टा, ठीक, प्रोटिस्टस, एसेलुलर, वायरसेस, सैटेलाइट्स, प्रियॉन्स, वायरियोइड्स, ठीक है। तो ये मतलब है जिनके बारे में माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो ये हम इससे पहले हमने बोला था, इससे पहले हम बोल रहे थे कि जो ये मैक्रो इन साइज है, जैसे ये है ना, मतलब मोल्ड, ब्रेड मोल्ड्स एंड पॉन्ड्स कम, थोड़ा सा इनका साइज थोड़ा मतलब एज कंपेयर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे हैव हाई, मतलब उनका जो ये है मतलब क्या साइज इंक्रीज, ठीक है, मतलब हाई मतलब जो ये साइज है इनका ये ज़्यादा है, ठीक है। तो मच हायर साइज उनका होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब मैक्रो हम
उनको बोलेंगे माइक्रो। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन के तरफ हम जाएंगे, ठीक है। जैसे टाइम पास होता रहा, रिसेंट मतलब जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे माइक्रोबायोलॉजी में, जो डेवलपमेंट्स है रिसेंट तो अभी बहुत एडवांस्ड है। उससे पहले अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि जैसे ही मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिस्कवर हुई, जैसे रस्कायन नॉलनेस को डिस्कवर किया, ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिस्कवर हो गई, तो स्कैनिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आया, ट्रांसमिशन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आई, तो उसकी वजह से जो सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर आर्किटेक्चर जो देखा गया, उसकी डिटेल्ड सेलुलर आर्किटेक्चर को स्टडी किया गया वेरियस ऑर्गेनिजम्स का, चाहे प्लांट्स है, एनिमल्स है, वायरसेस है, चाहे मतलब ये है बैक्टीरिया है, आर्किया है, वेदर ये मतलब ये ना मतलब फंगाई है, ठीक। तो जो मतलब अगर हम बोलेंगे, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ये एक बिल्डिंग है, ठीक, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ये रूम्स है, ठीक है, ये रूम्स है या विंडोज़ है। तो मानो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्लान है, इसको बोले हैं ये है यहाँ पे मतलब जो रूम्स अलग अलग है ना, ये अलग अलग रूम्स है यहाँ पे, या बिल्डिंग है। वैसे ही सेल्स को पहले देखा गया, जब उनका डिटेल्ड आर्किटेक्चर, सेलुलर आर्किटेक्चर जब देखा गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म था, तो साइंटिस्ट्स का जो है, हम साइंटिस्ट्स इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्होंने बोला कि कहीं पे सेल, बिल्कुल सेल जो थी उसको आउटसाइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ठीक, चाहे सेल वॉल था या सेल मेम्ब्रेन था, अंदर से फिर न्यूक्लियस था, ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, कंपार्टमेंटलाइजेशन था, वहां पे कंपार्टमेंट्स थे, मेम्ब्रेन्स थे, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे राइबोसोम है। उन्होंने देखा कि किसी सेल में, कुछ सेल्स में उन्होंने देखा कि बिल्कुल क्लोज्ड फ्लोर प्लान है, क्लोज्ड फ्लोर प्लान, क्लोज्ड फ्लोर प्लान के हिसाब से मतलब कि कंपार्टमेंट्स है वहां पे देयर आर कंपार्टमेंट्स, देयर आर मेम्ब्रेन्स, ओके, देयर आर मेम्ब्रेन्स, दीज मेम्ब्रेन्स दैट एनक्लोज डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स और सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो एक सेल है इसमें ऑर्गेनेल्स है, मगर इन ऑर्गेनेल्स को बाहर से, जैसे न्यूक्लियर मटेरियल है, चाहे डीएनए है या आरएनए है, ये न्यूक्लियर मटेरियल है, इस न्यूक्लियर मटेरियल को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज है। अगर ये मतलब मानो आप ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक, अगर ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, ये है न्यूक्लियर मटेरियल, तो जैसे ये न्यूक्लियर मटेरियल है, कुछ सेल्स में इन्होंने देखा ये एनक्लोज मेम्ब्रेन में है, न्यूक्लियर मटेरियल इज एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन एंड दोज वर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक, यूकैरियोटिक सेल्स, और जिनमें इनमें क्लोज्ड फ्लोर प्लान है, और जिनमें ये मतलब मेम्ब्रेन नहीं था, जिनमें ये जैसे अगर न्यूक्लियर मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिल्कुल विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनमें मेम्ब्रेन नहीं थे, उनमें ओपन फ्लोर प्लान, कुछ में इन्होंने देखा ओपन फ्लोर प्लान। अगर ये मतलब सेल है यहाँ पे, ठीक, ये साइटोप्लाज्म है, ये डीएन, ये चाहे न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, कोई मतलब जैसे कुछ कोई मेम्ब्रेन्स नहीं है, कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, मगर कुछ सेल्स में इन्होंने कंपार्टमेंट्स देखे। यहाँ पे ये ओपन फ्लोर प्लान किन में? प्रोकैरियोट्स में। ये किन में है? यूकैरियोट्स। हम डिटेल में कमिंग लेक्चर्स में इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या है। फिलहाल आपको अगर ऐसे भी समझ आएगा, यहाँ पे ये सिंपल है। प्रो, ये ग्रीक वर्ड, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, प्रो मीन्स बिफोर, बिफोर और फर्स्ट, कैरियन मीन्स नट या कर्नल बोलते हैं हम, नट, शेल हम बोलेंगे, या न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस मतलब है प्रोकैरियोट्स। तो ये जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट, यू मीनिंग ट्रू, कैरियोट मीनिंग न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। इनने बोला इनमें न्यूक्लियस ट्रू, इनमें मतलब न्यूक्लियस थोड़ा यहाँ पे मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये है प्रोकैरियोट्स, ये है यूकैरियोट्स। तो ये हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन पहले कैसे हुई, ठीक। फिर जब जो ये मतलब क्लासिफिकेशन जो ये आई, ठीक, जैसे हमने इससे पहले कहा कि मतलब
सेलुलर में हमने देखा फंजाई है, प्रोटिस्टा है, बैक्टीरिया, आर्किया है। अगर फंगाई में एग्जांपल देखेंगे यीस्ट्स एंड मोल्ड्स, ठीक। अगर एल्गी में एग्जांपल अगर इसमें प्रोटिस्टा में एल्गी एग्जांपल देखेंगे, एल्गी, प्रोटोजोआ है, स्लाइम मोल्ड्स है, ठीक है। बैक्टीरिया ई कोलाई है, ठीक है। आर्किया में मिथेनोजेन्स है, मिथेनोजेन्स जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इनको मीथेन जनरेटर्स, ठीक। लेकिन जब क्लासिफिकेशन हुई, ये जो वायरसेस है, वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है, वायरसेस की अपनी क्लासिफिकेशन है, वायरसेस एंड अदर वायरल एंटाइटीज, अदर वायरल एंटाइटीज और अदर वायरल इन्फेक्शस एंटाइटीज, इन्फेक्शस जैसे प्रियॉन्स है, वायरोइड्स है, ठीक है, सैटेलाइट्स है, इनको अपनी क्लासिफिकेशन है। तो जब साइंटिस्ट्स ने ये डिटेल्ड सेल स्ट्रक्चर के जानने के बाद, जब इन्होंने ये डिफरेंशिएट कर पाया कि ये मतलब ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, ठीक है। मगर जो ये जो मतलब जैसे हमने इससे पहले किया था ब्रेड मोल्ड एंड पॉन्ड्सकम जो है, इनमें ये जो ब्रेड मोल्ड एंड पॉन्ड्सकम है, इन्होंने बोला ये एग्रीगेट्स में होते हैं। ये जो पॉन्ड्सकम है या क्या हमने बोला था ब्रेड मोल्ड, ये एग्रीगेट्स में, ये सेल्स एग्रीगेशन में होती है, ये सेल्स एग्रीगेशन में होती है, एग्रीगेशन, ठीक। मगर ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांटी से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि हम जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, हम में डिवीजन ऑफ लेबर है, हम में टिश्यू डिफरेंशिएशन है। जो हम ह्यूमन से, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। सपोज करो कि मैं एक ह्यूमन बीइंग, मैं खुद ह्यूमन बीइंग हूँ, आप भी हो ह्यूमन बीइंग, हम जो है मल्टी सेलुलर है, ठीक। हम में जो सेलुलर डिफरेंस, ये है सेल है, डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच मे और मे नॉट बी इन ग्रुप टुगेदर। हम ये नहीं बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स हमेशा ये ग्रुप होना चाहिए, सेल्स मे बी इन ग्रुप और नॉट मे बी इन ग्रुप, वो मैं लेटर लेक्चर में बताऊंगा हम क्यों नहीं बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। नो, ये गलत होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉट, हम अगर बोलेंगे हाँ ये ग्रुप में होते हैं कहीं पे, लेकिन कहीं जगह पे सेल्स ग्रुप में होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनका जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन है वो बरकरार है, इंटीग्रिटी, सेल इंटीग्रिटी एंड सेल कम्युनिकेशन होना चाहिए सेल्स के दरमियान, और सिमिलर इन ऑरिजिन होने चाहिए, वो टिश्यू बनाता है, ठीक है। सिमिलर इन ऑरिजिन, हैविंग द सेम इंटरेक्शंस विद ईच अदर, मे बी इन ग्रुप और मे नॉट बी इन ग्रुप। जैसे यहां से जैसे टी हेल्पर सेल्स जो थाइमस में उनकी डेवलपमेंट होती है, किनकी, टी सेल्स की, टी लिम्फोसाइट्स की डेवलपमेंट कहां पे होती है, थाइमस में, तो वहां पे वो ग्रुप में नहीं होते यहां से, ठीक। तो वैसे ही हम बोलेंगे कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, मुझ में डिवीजन ऑफ, आप में, हम में डिवीजन ऑफ लेबर है, हमारी जो सेल्स है, हमारी जो टिश्यूज है, डिफरेंट टिश्यू डिफरेंशिएशन है, मतलब हमारे में टिश्यूज, अलग अलग टिश्यूज होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स, हम मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। तो मगर इनमें यहाँ पे इन ऑर्गेनिज्म में जो ये चाहे मल्टी सेलुलर अगर है, लेकिन इनका जो ये है मतलब टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होती है, नो टिश्यू डिफरेंशिएशन। हाँ मल्टी सेलुलर है, चाहे यीस्ट है, मोल्ड कुछ है, अगर फंगाई वंगाई कुछ है, मतलब सॉरी यीस्ट, कुछ फंगाई है जो यहाँ पे सेल्स एग्रीगेशन में होते हैं, ठीक है, ये सेल्स एग्रीगेशन में होते हैं। टिश्यू है मतलब टिश्यू, मतलब ये जहाँ पे जो टिश्यू डिफरेंशिएशन है, नो टिश्यू डिफरेंशिएशन, नो टिश्यू डिफरेंशिएशन। मल्टी सेलुलर है, यहाँ पे सेल्स है बहुत सारे, मगर टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं है। मल्टी सेलुलर जो है ना असल में, उसमें टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे सेल्स है, सेल एग्रीगेट्स है, मगर टिश्यू डिफरेंशिएशन, सेल एग्रीगेट्स है, ठीक, मगर टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं है। तो फिर जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आई, अर्लियर जो क्लासिफिकेशन थी वो थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है, एनिमिलिया है, प्लांटी है, ठीक। अर्लियर क्लासिफिकेशन। माइक्रोबियल टैक्सोनॉमिस्ट्स को उनको चैलेंज हुआ, किस पे, जो ये माइक्रोबियल टैक्सोनॉमिस्ट्स है, ठीक। जब
इनको थोड़ा चैलेंज हुई कि हम कैसे अब इन ऑर्गेनिज्म्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करें। ठीक, पहले पहले उनको बहुत बड़ी चैलेंज थी ये, रही है ये। लेकिन विद रीसेंट डेवलपमेंट्स, विद कमिंग डेवलपमेंट्स जो हुई माइक्रोस्कोपी में, या डिटेल स्ट्रक्चर पाया गया, या बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन की गई, तो फिर क्या हुआ कि मतलब इन्होंने कोशिश की कि इनको हम क्लासिफाई करें। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन जो थी वो थी मुनीरा, ठीक, प्रोटिस्टा, मुनीरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ठीक, एनमिलिया, एंड प्लांटी। मुनीरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, ये अर्लियर क्लासिफिकेशन थी। कौन? लेकिन जो साइंटिस्ट्स ने जब ये क्लासिफिकेशन शुरू की, उन्होंने बोला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। फिर लेटर ऑन ये अप्रूव माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, किसी टाइम तक ये रही, लेकिन उसके बाद इसको भी रिजेक्ट किया गया, ये एक्सेप्ट की नहीं की गई। वो एक्सेप्ट क्यों नहीं की गई, इसका मतलब ये अप्रूवल क्यों नहीं मिला, ये फिर मतलब इसको नहीं एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स, क्यों नहीं किया वो मैं लेटर लेक्चर्स में बताऊंगा इंशाल्लाह, कमिंग लेक्चर्स में। तो फिलहाल जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई, मुनीरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया, प्लांटी, इंशाल्लाह इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो we will go in detail into this, and why why it was rejected, and why it was not accepted. Okay, thank you. In the next series we will study about that.